Yes. So combination or synthesis, okay, decomposition, single displacement, double displacement, and this oxidation reduction reactions we can in short say that it is the redox reactions. So these are the basically four types of reactions that we are discussing within our syllabus. So in our previous class we discussed about the combination synthesis reaction as well as the decomposition reaction. So today Today we will be covering about the single displacement and double displacement. Now, for example, in the previous class, one of the students asked about the synthesis of sodium chloride. Okay, so one reaction involves the acid and base. Okay, NaOH can react with the hydrogen chloride to form the salt plus water. Okay, this is one thing. And there is another one where directly sodium the elements they can combine together to form the NaCl. Okay, so in order to balance, just we will put this one. So of these two reactions, which is a combination or synthesis reaction, A or B? B number. B number is the B number. combination because only single product is formed. चलिए decomposition भी हमने देखा that decomposition reaction involves the use of the heat or light, okay, or some similar agents like electricity to decompose the chemical into the smaller constituents. Today we will be discussing about the displacement reactions, very important displacement reactions. Now displacement reactions. So displacement reactions का मतलब है कि one reactant is going to replace with the general formula. Suppose we will write the B is going to replace C here, for example. Okay, that means something that is more reactive will replace this is more reactive or this is more reactive. B is more reactive or C is more reactive for this reaction to take place. Should C be more reactive to replace B or should be less reactive to replace B? Sir, C should be more reactive than B. Should be More more reactive. reactive. Correct? More reactive. Correct? Sir, more reactive. हाँ, तो C जब ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी वो B को हटा के ये B के स्थान पे आके बढ़ जाएगा. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को हटा देगा कंपाउंड से. तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी रिएक्शन होने की संभावना है या नहीं. इसके लिए क्या चाहिए आपको? एक्टिविटी और reactivity series. What is this activity reactivity series? The arrangement of the elements from the more reactive to less reactive. More reactive to less reactive का मतलब क्या हो गया? Decreasing order की increasing order? From more to less. Decreasing order. Decreasing order. Sir, decreasing order. डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप इन एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे अपने रिएक्टिविटी के अनुसार तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज. सो इस चीज को जो है हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या बनता है. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, iron, nickel, tin, lead, hydrogen is there as a reference,
उससे भी कम रिएक्शन में आता है, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो इसमें जो रिएक्टिविटी है वो ऊपर से नीचे आते समय ये जो प्लैटिनम है वो ज्यादा रिएक्टिव है या पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है? Potassium is पोटेशियम more रिएक्टिव, पोटेशियम। और ये देखिए गोल्ड है, प्लैटिनम है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि गोल्ड बहुत कम रिएक्टिव होता है। दैट इज वाई ऑर्नामेंट्स एंड एवरीथिंग पीपल मेक आउट ऑफ गोल्ड सो दैट इट कैन बी देयर फॉर मेनी जनरेशंस, इट डजंट रिएक्ट वेरी मच। तो एकदम नया जैसा भी कई सालों तक वो बना हुआ रहता है, प्लैटिनम, गोल्ड, ठीक है। तो ये जो ज्यादा रिएक्टिव से कम रिएक्टिव का ये सीक्वेंस हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसे हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज। नाउ फॉर एग्जांपल आपको एक अगर ऐसे पूछा जाए कि जिंक ले रहे हैं और कॉपर सल्फेट के साथ उसको हम रिएक्ट कर रहे हैं, क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? क्या जिंक कॉपर को रिप्लेस कर पाएगा? यस सर। यस, ठीक है। हम देख रहे हैं कि जिंक यहाँ पे है सीरीज में और कॉपर यहाँ पे है। तो इसका मतलब हुआ कि जिंक कॉपर के ऊपर है, यानी ज्यादा रिएक्टिव है। क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये इसको रिप्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट प्लस कॉपर को बाहर निकाल दिया। ओके, इन दिस वे योर लाइफ बिकम्स इजी, बशर्ते आप इस चीज को याद रखिए, एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज को। तो जिंक, एक और एग्जांपल देखते हैं, लेड विथ कॉपर क्लोराइड। लेड कहां गया? यहाँ पे लेड, और कॉपर यहाँ पे है। क्या लेड कॉपर के पहले आ रहा है? आ रहा है। तो ये इसको रिप्लेस कर पाएगा? करना चाहिए। यस सर। करना lead sulfate plus C. अब अगर हम इसे लिखें कि सिल्वर विथ कॉपर क्लोराइड, रिएक्शन होगा? नहीं सर। नहीं। No sir. No sir. No sir. क्योंकि Sir, but सिल्वर, inverse will be. हाँ, द रिवर्स विल बी, बिकॉज सिल्वर इज बिलो, कॉपर पहले आ रहा है एक्टिविटी सीरीज में, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है देन सिल्वर, ये रिएक्शन नहीं होगा। सिमिलरली वी हैव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शंस। जस्ट आप जो है इसका सॉल्ट चेंज कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट है, कॉपर के साथ रिएक्ट होगा तो ये कॉपर नाइट्रेट फॉर्म करेगा 2Ag। ओके, नाउ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज जिंक। आपने रिएक्ट किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये है, इसको एक्वस लिखते हैं या DIL डाइल्यूट लिखते हैं। ओके, आइदर वे इज फाइन। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में आप जिंक का एक रॉड डाल देंगे तो क्या रिएक्शन होगा? जिंक कहां पे है? यहां पे है, और हाइड्रोजन कहां पे है? यहां पे। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। Yes sir. करेक्ट। तो Yes sir. तो क्या करेगा? ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा, ये जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। ठीक है, दिस इज ए इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि जब आप डाइल्यूट एसिड को रिएक्ट करते हैं किसी मेटल के साथ जो कि आपके एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, पहले आता है, तो वो क्या करेगा? वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है तो आपको पता अगर चला ना कि भाई कौन सा गैस निकला, तो उसमें आप क्या कीजिएगा? उसमें what simple test you can do that whether it is a hydrogen gas or not?
एक माचिस जलाइए और ऊपर लगा दीजिए जहां टेस्ट ट्यूब के ऊपर, तो वो जो गैस निकलेगा व्हेन इट इज कमिंग इन कांटेक्ट विद दैट फ्लेम, वो साउंड करेगा, पिट 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 काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ साउंड इट विल मेक, ओके, क्रैकलिंग साउंड. Okay, so that will tell that it is a hydrogen. Hydrogen is highly combustible gas, है ना? So that is the one type of important reaction. अब इसमें हमने जो Sir. भी, हाँ, Sir, you told zinc if with sulfuric acid, then hydrogen gas will be released हाँ, because it anything above the hydrogen will release hydrogen gas. correct. So, like apart from zinc, if we put aluminum also, then also. Then also you will get. Then also you will get. अब देखिए Okay. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पोटेशियम और सोडियम है, पोटेशियम और सोडियम जो Yes, है sir. इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि सीधा ब्लास्ट कर जाता है. यहां तक कि आप डायरेक्ट जब पानी में, ये एक्सपेरिमेंट बच्चों के लिए भी दिखाया जाता है कि आप थोड़ा सा जो है प्योर सोडियम आप डाल दिए वाटर के ऊपर, तो भुक करके एक ही बार एकदम लगेगा जैसे कि ब्लास्ट हो गया. इतना ज्यादा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि इट रिलीजेस इंस्टेंट लॉट ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन तो हम लोग नॉर्मल में कर ही नहीं पाएंगे. तो कैल्शियम से आप शुरू कर सकते हो. कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, यहां तक जो मेटल्स हैं, ये जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में देंगे तब ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा. ठीक, Okay, sir. Thank you. चलिए, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अभी तो हमने देखा सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और ये जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में हमने जो जो एग्जाम्पल देखा, सब एग्जाम्पल मेटल के साथ है, ऑल आर मेटल्स. तो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नॉन मेटल में नहीं होता है? So displacement reaction can take place in the non-metals also. कैसे? अब आप अगर क्लोरीन गैस को पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन. आप आगे के क्लासेस में देखेंगे रिएक्टिविटी में, जो पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं, हैलोजेंस के अंदर आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो जो सबसे ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है. क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से, इसीलिए वो क्या करेगा, क्या कंपाउंड बन जाएगा? क्लोरीन विल रिप्लेस bromine to form the potassium chloride, and the bromine will be released in the form of bromine gas. ठीक है, इसको बैलेंस कर दिए. तो ये जो ब्रोमीन गैस निकला, इट इज विजिबल एज ए रेडिश ब्राउन गैस. ओके, ब्रोमीन सुनने में भी ब्राउन टाइप का लगता है, रेडिश ब्राउन गैस इसका बनता है, ब्रोमीन गैस. तो ब्रोमीन गैस जो है, ये रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये आपको आसानी से पता चल जाएगा. when you give the pass the chlorine gas with the potassium bromide, then it will form the salt, that is the potassium chloride, and it will release the bromine gas. So therefore non-metals will also show the single displacement reaction. चलिए, तो यहां तक क्लियर है? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? Sir, I am unable to understand double displacement. डबल डिस्प्लेसमेंट, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट तो वो हम लोग इसके बाद करेंगे. अभी तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हमने डिस्कस किया. सिंगल डिस्प्लेसमेंट में आपको कोई डाउट्स तो नहीं? यूर क्लियर विद दिस वन? No, sir. चलिए, तो हम लोग वी विल मूव टू द सेकंड वन, दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट. तो डबल डिस्प्लेसमेंट जब हम लोग बोल रहे हैं, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला बनता है, दैट इज
AB plus CD will give rise to, we are expecting that these two are going to replace each other, for example. So AC plus BD, समझिए कि ये एक रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो इस रिएक्शन को देख के आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन, ये एक कंपाउंड है, ए बी एक कंपाउंड है और सी डी एक कंपाउंड है, ठीक। तो ये दोनों इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, ए एलिमेंट, बी एलिमेंट, सी एलिमेंट, डी एलिमेंट, और ये आपको प्रोडक्ट बना। इस रिएक्शन को देख के आप क्या बता सकते हैं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है? Sir, C. C is more reactive than B. B. ओके, तो C is more reactive than B, इसीलिए C जाके B को रिप्लेस कर दिया। ओके, क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि B C से ज्यादा रिएक्टिव है? ऐसा भी तो बोल सकते हैं। B is हाँ sir. हाँ, बोल सकते हैं ना? B Yes, sir. हाँ, ये भी बोल सकते हैं। तो Sir, दोनों, we can also say. हाँ, Sir, we can also say B is more reactive than D. B is more reactive than D. Then what is going to happen? B has to replace D. ओके, तब D इधर आ जाएगा, तब AD, तब क्या कंपाउंड बन जाएगा? AD प्लस BC बन जाएगा, है ना? सो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, इसको देख के आप ये तो बोल सकते हो कि B और C ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक। नाउ वी विल सी सम एग्जांपल। नाउ in the case of double displacement, the most famous example is silver nitrate with sodium chloride. ये बहुत ही ज्यादा फेमस एग्जाम्पल है, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपको बड़े आसानी से घर में मिल जाता है, और सिल्वर नाइट्रेट भी बहुत ज्यादा रेयर केमिकल नहीं है, क्योंकि ये भी जो फोटोग्राफी वगैरह में जो फिल्म डेवलपमेंट के लिए इसका खूब प्रयोग होता था, पहले बहुत होता था। तो नाउ ये जब आप रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड बनेगा कि नहीं बनेगा? आप पहले देख लीजिए रिएक्टिविटी सीरीज में, यू कैन चेक योरसेल्फ। सो सिल्वर एंड सोडियम देख लेते हैं। सिल्वर कहां पे है? यहां पे, और सोडियम यहां पे है ना? तो सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, सोडियम इज मोर रिएक्टिव। चलिए, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए उस वो जो है सिल्वर को रिप्लेस कर देगा, करेक्ट, एंड इट विल फॉर्म द सोडियम nitrate. Okay, now this particular silver chloride, it forms the white precipitate. Okay, तो silver nitrate is converted to silver chloride. टेस्ट ट्यूब में एक व्हाइट प्रेसिपिटेट जैसा ये दिखाई देता है, जस्ट बाय एडिंग सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड विल बिकम एज सोडियम नाइट्रेट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है? Yes. है, Yes, sir. Because Yes, both are being replaced. बोथ आर। Yes, sir. तो ये एक बड़ा एक्सीलेंट एग्जाम्पल है, आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी कई बार इसको जो है इंपॉर्टेंस दिया जाता है। दूसरा, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट किया गया सोडियम सल्फेट के साथ। तो अब ये क्वेश्चन है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। एक तरफ सोडियम है और एक तरफ बेरियम है, तो हम लोग को तो भाई यही पता है कि हमको रिएक्टिविटी सीरीज में चेक करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें तो बेरियम तो नहीं लिखा हुआ है, करेक्ट।
यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। सोडियम तो एकदम स्टार्टिंग में आ गया, लेकिन बेरियम तो लिस्ट में कहीं नहीं दिखा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप होशियारी करोगे। क्या होशियारी करोगे कि देखिए ये लिस्ट तो पूरा कंप्लीट नहीं है, सभी जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं उनका तो लंबा चौड़ा लिस्ट तो आपको नहीं सिखाया जा सकता है, लेकिन नो सर। इसमें जो है जो पहला दो एलिमेंट है हाईली रिएक्टिव, क्या है, पोटेशियम, सोडियम। ये तो आपको एकदम स्टार्टिंग में याद हो गया, पोटेशियम, सोडियम। और उसके बाद जो भी आएगा वो इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा या कम रिएक्टिव होगा? लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव होगा। तो सोडियम बेरियम को रिप्लेस कर सकता है, करेक्ट। तब ये हो जाएगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, रिएक्शन होगा। तो in this way this barium sulfate again also forms the white precipitate. ओके, बेरियम सल्फेट में भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, सिल्वर क्लोराइड में भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ये बड़ा आसान तरीका है, टेस्ट ट्यूब में आपको जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट जो दिखाई देगा उसको आप देख के बोल सकते हैं कि यस द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ओके, सो दिस इज अबाउट द displacement reaction. So two types of displacement reactions we saw, single displacement and double displacement reactions. Displacement reactions में जहां पर भी प्रेसिपिटेट बन रहा है उससे आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। Sir, so this example is a precipitation reaction in the book? Yes, definitely it is a precipitation reaction. In fact, even though it is not a displacement reaction, कोई भी दूसरा टाइप का रिएक्शन रहे लेकिन अगर उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। Now, just a few 2-3 more examples we can see for the double displacement. सोडियम डाइसोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट with HCl, that is the hydrogen chloride, what will it form? Any guess please? Sodium hydrogen Na2 plus सोडियम NaCl. हाँ देखिए NaCl NaCl and will release hydrogen gas. देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस वाला चीज नहीं होगा क्योंकि हम आपको तो नहीं बोले कि ये डाइल्यूट एसिड है, ठीक है। तो वो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज वाला चीज है वो कब होता है, when you are taking the pure metal, not this kind of combined compound. सोडियम मेटल को अगर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तब हाइड्रोजन गैस आएगा। लेकिन यहाँ पे केस दूसरा है, ये जो है प्योर सोडियम नहीं है, सोडियम कार्बोनेट है और ये एसिड भी डाइल्यूट नहीं है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड एज इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसमें आपको क्या बनेगा, रिप्लेसमेंट इज सोडियम इज गोइंग टू रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन विथ दिस वन विल कंबाइन टू फॉर्म H2CO3 which is your carbonic acid. Okay, so in this way one compound. Okay, similarly let us try to guess what happens with lead nitrate reaction with potassium iodide. lead पोटेशियम लेड कंपाउंड बनेगा या पोटेशियम आयोडाइड कंपाउंड बनेगा? सर पोटेशियम आयोडाइड बनेगा क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड। हाँ देखिए ये जो है ये तो मेटल है Pb,
तो इसको अगर आप आयोनाइज करोगे, पानी में देंगे, तो ये तो पॉजिटिव कैटायन बनेगा और NO3 वाला जो है ये नेगेटिव बनेगा। इसी तरीके से पोटेशियम भी पॉजिटिव, आयोडीन भी नेगेटिव। तो पॉजिटिव तो नेगेटिव के साथ ही तो रिएक्ट करेगा, तो बनेगा क्या? लेड आयोडाइड। ओके, वैलेंसी इसका 2 में आता है, PbI2 लेड आयोडाइड, और ये पोटेशियम नाइट्रेट के साथ टू फॉर्म पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, इसको बैलेंस कर दिया जाए। चलिए अब एक तो और देख लेते हैं, इसमें आप गेस कीजिए। बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है अमोनियम क्लोराइड के साथ। Barium chloride and ammonium Barium chloride hydroxide. and ammonium hydroxide. हाँ, तो इसमें आपका बनेगा ये बेरियम क्लोराइड, और देखिए यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे क्या हो जा रहा है कि 2 कंपाउंड अलग अलग बन जा रहे हैं, वाटर एंड अमोनिया। ठीक, सो रिएक्शंस कैन बी प्रिडिक्टेड। थोड़ा सा हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन लिटिल बिट ऑफ केमिस्ट्री में ना आपको याद भी कुछ कुछ रिएक्शंस, स्पेशल रिएक्शंस, एक्सेप्शन रिएक्शंस, इस टाइप के आपको याद भी रखने पड़ते हैं। तो ये क्या हो रहा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट कर रहा है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बन के वाटर प्लस अमोनिया फॉर्मेशन आ रहा है। ठीक, तो ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का कंप्लीट जो है हमने डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में यू आर ऑल क्लियर? Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। Yes. We will go on to the next very important and interesting type of reaction. That is the now it is already time is, yeah, it is 8:30. Yeah, it's already 8:32. So अपना केवल half an hour का क्लास है। So in our next class we will discuss about the very interesting important reactions. They are the redox reactions. What is oxidation? What is reduction? What are reducing agents? What are oxidizing agents? What are oxides? What are the different types of oxides? We will discuss in the next class. Okay, so Sir, I have a doubt. हाँ, Excuse me, sir. हाँ, yes, you can I have a doubt. हाँ, In the reaction in which barium hydroxide reacts with ammonium chloride, हाँ। why do water and ammonia gas form instead of ammonium hydroxide? देखिए यही चीज है कि आपको क्या होगा कि केमिस्ट्री में एक्सपेक्टेड रिएक्शन से, यानी आप केमिस्ट्री में क्या करते हैं, लॉजिक ढूंढने का कोशिश करते हैं। बेसिकली क्या है, केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स का जो रिएक्शन है वो किसके बेसिस पे होता है? इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे होता है। करेक्ट, केमिस्ट्री का पूरा खेल इलेक्ट्रॉन्स का है। केमिकल रिएक्शंस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसका खेल है। तो जब हम लोग केमिस्ट्री में कोई प्रॉपर्टी के बारे में एक्सपेक्ट करने की कोशिश करते हैं, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं? उसके इलेक्ट्रॉन्स का जो वैलेंसी है, उसका जो रिएक्टिविटी है, उसके बेसिस पे करते हैं। बट that is not always true. It also depends upon the specific conditions. मतलब क्या ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हुआ? क्या ये रिएक्शन जो है कोई स्पेसिफिक कैटलिस्ट डाल के किया गया? तो इस टाइप के कई उसमें कंडीशंस भी रहते हैं। तो जैसे कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन है, दिस इफ यू परफॉर्म एट ए नॉर्मल रूम टेम्परेचर यू विल गेट दीज प्रोडक्ट्स. You may expect otherwise, but you will get these products. So some things are what we can predict. Some things we cannot perfectly predict. That is also there. Okay. So chemistry में थोड़ा सा हम लोग को जो है उसको तो हम लोग गलत नहीं बोल सकते हैं। जो हो रहा है वही हो रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं